ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ تو ہم نے اس دن ہمارے لیکچر کا جو مناقب عمر بن عبدالعزیز یعنی اردو کا پہلا لیسن جو ہے وہ یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اس کا نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، سلاطین بنی امیہ سے مراد اموی خاندان کے حکمران۔ تو اموی خاندان جو ہے وہ ایک خلافت راشدہ کا جس طرح سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد خلافت جو ہے اس کا سلسلہ بنو امیہ کے خاندان کے پاس چلا گیا۔ تو وہ جس طرح یہ پچھلے پورشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے وہ بنی امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ تو اسی طرح یہ ان کا حکمرانی کا سلسلہ جو ہے یا خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا تھا۔ تو سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ تو یعنی کہ اس خاندان میں یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا حکمران جب عہد خلافت اس کا سلسلہ کا دور شروع ہوتا تو وہ اپنی وہ جو زمینیں وغیرہ تھیں ان کے پاس تو وہ اپنے ہی خاندان میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ تو اس طرح سے یعنی کہ وہ جاگیر جو ہے وہ نسل در نسل انہی کے خاندان میں چلتی آ رہی تھی۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ تو سلاطین تیموریہ سے مراد تیموریہ خاندان، آل تیمور اس سے مراد ہے، یعنی اس خاندان کے حکمران۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو یہ مطلب بتاتے چلیں کہ یہ مغلیہ دور سے یعنی ان خاندان کا تعلق ہے۔ تو ہندوستان کے اندر ان کی بادشاہت کا آغاز جو ہے وہ ظہیر الدین بابر سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یعنی کہ یہ وہ مغلیہ خاندان جنہوں نے ہندوستان پر بادشاہت کی تھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز تخت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ جو ہے وہ نہ کی کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اس پیراگراف کے حوالے سے تھوڑا سا یہ آپ کو اس کی وضاحت کرتے چلے کہ شاہی خاندان کے یعنی کہ اس کے اندر یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ اس میں یہ ہے کہ دوسرے افراد کے علاوہ خود ان کے خاندان کے قبضے میں بھی بڑی بڑی جاگیریں موجود ہوتی تھیں۔ انہوں نے یعنی ہندوستان کے اندر جو یہ تھا کہ بڑے بڑے صوبے جو ہے وہ شہزادوں کو بطور جاگیر عطا کر دیے جاتے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ اس برائی کا سدباب کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسلامی شرعی نقطہ نظر سے کسی شخص کی ملکیتی جائیداد کو بلا اجازت اور بغیر قیمت ادا کیے یہ تھا کہ کوئی اور شخص حتیٰ کہ حکومت بھی اس کو قبضے میں نہیں لے سکتی، لیکن خاندان بنو امیہ کے حکمرانوں نے یہ کام تو ڈنکے کی چوٹ پر کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو کام کو ناجائز جو ہے وہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس کو پہلے دن سے ہی ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ جاگیریں جو ہے وہ شاہی خاندان کے دوسرے افراد کے علاوہ خود ان کے خاندان کے قبضے میں بھی تھیں۔ تو اس سلسلے میں انہیں شدید مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، بہت سارے لوگوں کی دشمنی کو بھی مول لینا پڑا، لیکن وہ اس فیصلے کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا کہ عوامی جاگیروں کے جو ناجائز قابضین تھے اور خود ان کے اپنے خاندان والے بھی اس سلسلے میں ان کے اپنے دشمن بن جائیں گے، لیکن انہوں نے ایک درست فیصلے کے تمام نتائج کا اندازہ ہونے کے باوجود اس پر عمل کیا اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مخالفت اور مزاحمت اور دشمنی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اور قرآن مجید کے اس فرمان پر پورا اترے کہ جب بات کہو تو عدل سے کہو، چاہے وہ تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے یعنی اس بات پر ناراض ہے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے، یعنی لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف بغاوت نہ کر دیں تو اور کوئی ہنگامہ برپا نہ کر دیں۔ مگر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر
वापस चली आईं, यानी उन्हें भी इस चीज़ में कामयाबी ना हुई, उन्होंने उनकी भी एक ना सुनी और अपने इस फैसले पर साबित कदम रहे। ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कब्ज़े में भी इस किस्म की जागीरें थीं जो इनके ख़ानदान को बनु उमय्या की तरफ से अनायत हुई थीं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा यानी मकहूल, मैमून बिन महरान और अबू कलाबा, जो कि एक बड़े उस दौर के बड़े मजहबी उलमा थे, बड़े आलम फाजिल लोग थे, दीनदार किस्म के लोग थे, उनको बुलाया और कहा कि इन जागीरों की निस्बत यानी इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है। तो मकहूल ने दबकर जवाब दिया, ज़रा थोड़ा सा झिझकते हुए, कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैमून की तरफ रुख किया कि उनसे पूछना चाहा। तो उसने भी उनसे कहा गया कि तुम खुदा लगती कहो, यानी सच बात कहो कि तुम क्या इसके बारे में राय रखते हो। उन्होंने कहा अपने साहबजादे अब्दुल मुल्क को बुला लीजिए, यानी उनसे राय ले लीजिए। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्यों अब्दुल मुल्क, जो कि अपने यानी साहबजादे से इसके बारे में राय तलब की, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा सब वापस कर देनी चाहिए, वरना आपका शुमार भी उन्हीं ज़ालिमों और गासिबों में होगा। तो यानी कि आपने इसमें भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ना सिर्फ ये था कि दूसरे लोगों की जागीरें जो है वो उनसे वापस ले ली, बल्कि जो अपने ख़ानदान के पास उनके पास थी उन्हें भी वापस करना चाहा। उसके बारे में उन्होंने जो है वो कुछ दीनदार और जो मुतदय्यन किस्म के लोग थे उनको बुलाकर उनकी राय जो है वो तलब की। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने ग़ुलाम से, जिनका नाम मज़ाहम था, वो और जिनको वो बहुत मानते थे, कहा लोगों ने जो ज़मीनें हमको दी ना वो इसके देने के मुजाज थे, ना हमको इनके लेने का हक था। तुम्हारी क्या राय है। यानी ग़ुलाम से भी, जो कि बहुत ज़्यादा जिनको वो चाहते थे, अपने बेटों की तरह उसको समझते थे, तो उससे भी इसके बारे में राय तलब की। तो मुजाज का मतलब होता है कि क्या, यानी कि हकदार होना या हक रखते हैं, यानी ये वो कि उन्होंने कहा कि ना वो इसके देने के मुजाज थे, यानी जो पहले लोगों ने उन्हें जागीरें दी थी ना वो लेने का हक रखते थे और ना ही उनको देने का किसी को हक था, ना ही उनको लेने का हक था। तो तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है। मुज़ाहम ने आगे से जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको ये भी मालूम है कि आपके बाल बच्चे कितने हैं, यानी इनका गुज़र क्यों कर होगा, किस तरह से होगा। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के आंसू निकल आए और कहा इनका मालिक खुदा है। ये कहकर घर में चले गए। मज़ाहम वहाँ से उठकर अब्दुल मलिक जो फर्जंदे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और कहा, फर्जंदे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो अब्दुल मलिक जो कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, और कहा बड़ा गज़ब हुआ चाहता है, यानी हो रहा है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम ख़ानदानी जागीरों से दस्तबरदार होना चाहते हैं, लेकिन मैंने इनसे कहा कि अपनी औलाद का लिहाज कर लीजिए, उनके बारे में उनका कुछ ख्याल कर लीजिए। अब्दुल मुल्क ने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, तुमने बहुत बुरी राय दी। ये कहकर अब्दुल मुल्क उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। वो इस वक्त ख्वाब राहत में थे। ख्वाब राहत से मुराद यानी आराम की नींद, सो रहे थे। पहरे वाले ने कहा कि तुम लोग अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रहम नहीं करते, यानी आप उनको जगाना चाहते हैं या उनकी नींद डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो मतलब आप इसके बाद आ जाएं, तो लेकिन फिर भी दिन भर में एक लहसा तो इनको आराम लेने दें। यानी ये उनके जो पहरेदार कह लें या उनके जो मुलाजिम थे, उसने आगे से उन्हें ये जवाब दिया है, एक लहजा से मुराद लम्हा भर तो उनको आराम करने दे। अब्दुल मुल्क ने कहा तू जाकर उनसे कह तो सही, यानी हमारे बारे में बताओ तो सही कि उनका बेटा जो है वो उनके पास आया है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी, अब्दुल मुल्क को अंदर बुलाया और कहा कि जाने पिदर, यानी बाप की जान या बाप के प्यारे बेटे, ये कौन सा मुलाकात का वक्त है। उन्होंने वाक़या बयान किया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं नमाज ज़ोहर के बाद मिंबर पर चढ़कर इसका ऐलान कर दूंगा। मिंबर से मुराद
यानी कि वो चबूतरा या वो ऊंची जगह जिस पर बैठकर इमाम जो है वो खुतबा दिया करता है या कोई ऐलान वगैरह जो है वो किया जाता है। यानी कि उस वक्त ये तो नहीं था कि ये स्पीकर और ये इस तरह के लाउड स्पीकर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि ये था कि आवाज़ बुलंद कोई भी ऐलान करना होता या कोई भी बात, मतलब कोई इमाम जो है वो मुखातिब होता आवाम से, तो वो इस तरह से यानी एक चबूतरे पर उस पर चढ़कर अपना जो है वो खिताब करता। अब्दुल मलिक ने कहा, इसका कौन ज़िम्मेदार है कि आप इस वक्त ज़िंदा रहेंगे, यानी उस वक्त तक ज़िंदगी और मौत, यानी इसका तो कोई भरोसा नहीं है कि इंसान को क्या पता कि उस वक्त तक वो आप ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं। गर्ज इसी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। शहर में मनादी करा दी गई। मनादी से मुराद ऐलान करा दिया गया कि लोग मस्जिद में जमा हों। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेंबर पर चढ़कर कहा, साहिबो, मैं इन तमाम ज़मीनों को, ये जो साहिबों के बाद आगे साइन बना हुआ है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी आगे इस बात की वजाहत है कि उन्होंने आगे क्या बात की कि मैं इन तमाम ज़मीनों को जो लोगों ने हमारे ख़ानदान को दी थी वापस करता हूँ। इसको हम, ये जो कौमा है, इसको हम ग्रामेटिकली उर्दू ग्रामर की रूह से ख़त्मा के लिए इसका लफ्ज़ जो है इसका यूज़ करते हैं। तो वापस करता हूँ क्योंकि देने वालों को ना देने का हक था ना हमको लेने का। ये कहकर जागीरात, जागीर की जमा है जागीरात की जो सनदें थीं, सनदों से मुराद क्या है, जो तहरीरी सबूत, जो सर्टिफिकेट्स थे, वो संदूक से निकलवाए और कैंची से कुतर कुतर कर उनको फेंकना शुरू कर दिया। ये जागीरें कुछ यमन में थी। तो स्टूडेंट्स, यमन जो है ये भी अरब का एक इलाका है जिसको यानी कि ये उधर उसके साथ ही एक जजीरा नमा जो है वो एक इलाका था। कुछ यमामा में कुछ जागीरें जो है वो यमामा में थी। चुनाचे सबसे पहले इन ज़मीनों से दस्तबरदारी ज़ाहिर की, यानी खुद अपनी ज़मीनों से दस्तबरदारी का मतलब छोड़ देना, तर्क कर देना, यानी खुद अपने कब्ज़े में जो चीज़ें थी उनको, उनसे दस्तबरदारी का ज़ाहिर की, उनको तर्क कर दिया, वापस कर दी गई। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यह है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम ख़ानदान में इब्ने सुलेमान, ये भी एक उमवी शहज़ादे थे, इनसे बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी जागीर की सनद लेकर, उसका सर्टिफिकेट लेकर जो है वो आया कि मेरी ज़मीन आप क्यों छीनते हैं। फरमाया कि पहले ये ज़मीन किसके कब्ज़े में थी? बोले कि हुज्जाज की। फरमाया तो हुज्जाज की औलाद का हक है, तुम कौन होते हो? तो स्टूडेंट्स, हज्जाज के बारे में आपको ये बताऊं कि ये हज्जाज बिन यूसुफ, जिन्होंने, यानी कि इन्होंने ये बहुत ही ज़ालिम और जाबर किस्म के गवर्नर रहे हैं। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में इराक़ के गवर्नर जो थे या हिजाज़ के गवर्नर जो है वो रहे, और इन्होंने ही बल्कि ये था कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ, इनके साथ लड़ाई में इन्होंने खाना काबा पर सांगबारी भी की थी। मगर इनका जो एक अहम इनके दौर का कारनामा है वो ये है कि इन्होंने कुरान पाक पर आराब लगवाई, और इन्हीं के दौर में मोहम्मद बिन कासम जैसे जर्नैल, मूसा बिन नुसैर और तारक बिन ज़ियाद जैसे जर्नैल जो है वो स्पेन और सिंध तक, उन्होंने इन्हीं की सरकर्दगी में उन्होंने जो है वो सिंध तक का इलाका फतह किया था। यानी ये इनके नुमायाँ कारनामों में ये चीज़ आ जाती है। तो कहा कि हुज्जाज की औलाद का हक है, तुम कौन होते हो? यानी कि ये अगर हुज्जाज ने तुम्हें दी है तो वो तुम क्यों उसके हकदार बने बैठे हो? तो इब्ने सुलेमान ने कहा, असल में ये ज़मीन आम मुसलमानों की थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तो आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए। इब्ने सुलेमान रोने लगे। मुज़ाहम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इब्ने सुलेमान के साथ ये बर्ताव करते हैं क्योंकि वो तो एक उमवी शहज़ादा भी है और आपके बहुत करीब भी है, आप बहुत उससे प्यार भी करते हैं। फरमाया, हाँ, मैं इब्ने सुलेमान को अपने बेटे के बराबर चाहता हूँ, लेकिन मैं ख़ुद अपने नफ्स के साथ यही बर्ताव करता हूँ। तो बनु उमय्या के दफ्तर अमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक गोई का इस्तेसाल कर दिया था। इस्तेसाल का मतलब ख़ात्मा कर देना, यानी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था कि किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी, कुछ कहने की आज़ादी नहीं थी, हत्ता कि सच बात कहने का भी उनसे हक छीन लिया गया था। अब्दुल मलिक ने तख्त पर बैठकर हुक्म दिया था कि कोई शख्स मेरी किसी बात पर रोक टोक ना करने पाए, और जो शख्स ऐसा करेगा सज़ा पाएगा।
اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ بدعت سے مراد یعنی ایسی بات جو کہ دین میں خود سے شامل کر لی جائے۔ دو نہایت